নমস্কার বন্ধুরা, চলে এসেছি আমার একটা নতুন ইউটিউব ভিডিও নিয়ে। আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম শুভদীপ চট্টোপাধ্যায় ব্লগিং। আজকের ভিডিওটা একটু বিশেষ ধরনের হতে চলেছে, কারণ তোমরা জানোই যে 23শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন ছিল। সেই উপলক্ষে আমি দাসনগর NSTIতে গেছিলাম। আমি ছাড়াও আরও অনেক মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিল। অনেক আমার থেকে অনেক সিনিয়র মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিল। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছে। এরপর আস্তে আস্তে করে নেতাজির ছবিতে মালা পরানো হবে। নেতাজির মালা পরিয়ে নেতাজির কে সুন্দর করে সাজানো হবে। এখানে দেখতেই পাচ্ছ আমরা সবাই মিলে কাজ করছি, ফুল ছাড়াচ্ছি। এবার আস্তে আস্তে আমরা সব ঠিকঠাক করে নেতাজির ছবিতে মালা পরিয়ে কে কী মানে নেতাজি সম্পর্কে বলবে, ভাষণ দেবে, নানা রকমের বক্তব্য রাখবে, সেই আলোচনাই করা হচ্ছে। তো 23শে জানুয়ারির দিনটা এমনই এক বিশেষ দিন। এই দিন স্কুল, কলেজ, অফিস সব জায়গায় নেতাজি মানে পতাকা তোলা হয়, ভাষণ দেওয়া হয়, এবং কেউ কবিতা আবৃত্তি যে যা পারে সেই সম্পর্কে মানে করে আর কি। কেউ কবিতা করে দেয়, কেউ আবৃত্তি করে, এবং কেউ বক্তব্য রাখে। তো এবার দেখতেই পাচ্ছ আমরা তো তৈরি হয়ে গেছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হতে চলেছে। এখন সাউন্ড সিস্টেমের কাজ চলছে। তো আমরা সবাই মিলে মাইকের সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে নাড়াঘাটা করছি, কিভাবে মাইকে কথা বলা হবে এবং মাইকের আওয়াজ কিভাবে জোরে করা হবে। এরপর আমি আর বেশি কথা বলবো না, তোমরা আস্তে আস্তে ভিডিওটা দেখতে থাকো এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ভিডিও উপভোগ করো, ঠিক আছে? আর ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো। Of the day. Good morning. And respected our Joint Director Sir, Deputy Director Sir, Assistant Director Sir, and our training officer, and others colleague, our students, and all agency staff, guest faculties, junior consultant, JVC, and all others. Everyone present here, myself Shankar Das, going to present and celebrate the Netaji Subhash Chandra Bose Janma Jayanti at NSTI Kolkata Dashnagar Howrah. A morning prayer is a wonderful way to focus your time and attention on seeking what plans. Today is our program. First, national flag hosting by our respected Joint Director Sir. Then offering flowers and garlands to the portrait of our Netaji Subhash Chandra Bose. And then address by our training officer, and then Assistant Director, Deputy Director, and finally our Joint Director. So now I request to our Joint Director Sir, Mr. G.C. Shaha, please come and host our national flag. मैं अभी बुलाना चाहता हूँ हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर रेस्पेक्टेड मनीष मिश्रा सर को। मिस्टर रूपेन कुमार शाह, ट्रेनिंग ऑफिसर। मिस्टर देवब्रत मंडल, ट्रेनिंग ऑफिसर।
Mr. Supriyo Rana, training officer. Mr. Shubhankar Rana, training officer. Mr. G.K. Shahu, training officer. Mr. Pallab Datta, training officer. Soumitra Ghosh. Devajyoti Basu. Mandakranta, Samrat, Digvijay. Karan. সুমিত ভট্টাচার্য, সুমিত ভট্টাচার্যের পর গৌতম সরকার, Paulumi. সুশোভন পল্লে, সুশোভন পল্লে, সৈকত বেড়া, রিয়াঙ্কা অধিকারী, लड़का लोग जो है, आप लोग जो शहीद बेदी पे फूल चढ़ाना चाहते हैं, आप भी एक एक करके आ जाइए। ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिए, एक एक करके आ जाइए। ठीक है, लाइन में थोड़ा सा एक एक करके आ जाइए। Then he went in persuasion for graduation. In graduation, he was studying Scottish Church College, which is in Kolkata. So at that time, Professor Otten, a British, he insulted the Indians very badly, and that Subhash Chandra Bose took up his sentiments, and he also beat up Professor Otten. Then he pursued for ICS, that is Indian Civil Service, and he became third in England. He became third in the ICS exam. So just imagine what intelligence he had. Kitna intelligent wo tha. But he did not join the British services because he disrespected the British. He did not join the British services. Otherwise, he could have easily become a collector or a magistrate. But he did not join the British service. Instead, he opted to join politics. He joined politics, and very soon in 1938, he was elected as the president of Indian National Congress. But due to some political ideologies differences, he left Indian National Congress in 1939. After that, he brought up his own party, that is All India Forward Bloc. Very soon, he was put under arrest in Presidency Jail. He was put under arrest by the Britishers due to his nationalist movements. But he went for Bhuk Hartal. He went for Bhuk Hartal in the jail itself,
and the British realized that he could become very sick. So they, the capital of Rome, the capital of Italy. So he went to Rome. From Rome, he was given, he was known as Count Orlando Matsuda. His name was given as Count Orlando Matsuda, and he got one Italian passport. So from Rome, he went to Berlin, and at that time he met Hitler, Adolf Hitler. So after meeting Hitler, they had a discussion about Indian independence and all that thing, but Hitler did not agree. But he impressed Hitler, and he went to the barracks where the prisoners of war were kept. The prisoners of war were kept, and at that time, many of the fighters were Indian. The British fighters were Indian because almost 75% of the British army consisted of Indians. So he met them, he impressed them, and they joined the Indian Legion. The Indian Legion, which was known as the Azad Hind Fauj. दिसंबर 30 को हम अंडमान गया था। आप लोग सभी सुने सेलुलर जेल। तो वहाँ जो लाइट एंड साउंड जो प्रोग्राम होता है, तो वो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम आप देखने से आपका हर रोम और शरीर का जो ब्लड है अंदर से गर्म हो जाता है, और दुख भी लगता है कि ब्रिटिश लोग इंडियन का ऊपर कितना अत्याचार किए थे। जो फ्रीडम फाइटर था, जो हमारा सेनानी था, उनका ऊपर इतना किस्म का अत्याचार किया, तो वहाँ जाने से ही पता चलेगा। फिर भी आज का दिन नेताजी सुभाष चंद्र का जन्मदिन है। हमारा युवा, आप लोग सब युवा है, आपका अनुप्रेरणा होगा। उनका जीवन शैली, उनका जो हिस्ट्री है, वो आप मौका मिलेगा तो आप थोड़ा पढ़िए, चर्चा कीजिए, क्योंकि उनका अंदर हमारा बंगाल से बहुत सारे उस टाइम मनीषी आया था, जैसे विवेकानंद भी आया। लास्ट 12 तारीख उनका जन्मदिन, 12 तारीख जन्मदिन चला गया। फिर भी ये लोग हमारा इंडिया का, भारतवर्ष का हर कोने में, हर आदमी का अंदर में है, अंतर में है। तो सबको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमारा ऑलरेडी हाजरा सर बहुत विस्तारित में बोल दिया। तो आप लोग से विदा लेना है, क्योंकि ऑलरेडी विदा हो चुका है, सिर्फ उधर ज्वाइन करना है। अगला 3 फरवरी को ज्वाइन करूँगा। और झारखंड का जितना भी ट्रेनिंग है, हम 1 साल तो रहेंगे, ज़्यादा नौकरी नहीं है, 14 महीना नौकरी है। तो आप रिटर्न इधर से ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जरूर मिले, और आपसे झारखंड में जो भी कोशिश होगा सहयोग से काम करेंगे। मुख्य आधिकारिक श्रीमान गौतम चंद्र साहा उपस्थित, उप आधिकारिक ISDS ऑफिसर मनीष मिश्र, मेरा साथी बैद्यनाथ हेमराम, और इधर प्रशिक्षक अधिकारिक, प्रशिक्षक, आउटसोर्सिंग और हर तरीका से कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को मेरा तरफ से नमन और धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इधर उपस्थित होने का कारण, इधर हमारा जो टेनिस और प्रशिक्षार्थी है, नया युग का नया फरिया, उसको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं का साथ। आप लोग जानता है, आज से 128 वर्ष पहले भारत का कटक शहर में बोस परिवार में एक छोटा बच्चा ने जन्म लिया, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। ये जो आज का जो कार्यक्रम एक भावुक करने वाला एक कार्यक्रम है। ये कोई आदमी, भारत का कोना कोना में रहने वाला कोई आदमी, ये नाम जब उसको कान पड़ जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो जो स्थिति में रहे, परिस्थिति में रहे, वो भावुक बन जाता है, मौन उसरा से भर जाता है। मैं स्मरण करता हूँ वो वीर सेनानी को, भारत का स्वाधीनता आंदोलनकारी, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, उनको 128 वर्ष जन्मदिन का पर मैं नमन करता हूँ। वो
नेताजी सुभाष चंद्र को चरण में मैं मेरा सिर झुका दूं। मैं नमन करता हूं। सरकार गठन किया, उसके बाद मणिपुरा से वो भारत का 150 किलोमीटर दखल कर लिया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का पराजित का कारण वो जापान को मजबूरी कर दिया, वो आत्मसमर्पण कर लिया। साथ साथ भारत का जो सेवन सिस्टर है, नॉर्थ ईस्ट है, उधर का उस टाइम में परिस्थिति एक भयानक परिस्थिति उद्भवन हुआ, जो आंधी और बारिश के कारण से और खाना का प्रॉब्लम से उनको मजबूरी कर दिया आत्मसमर्पण करने के लिए। बात है कि उन्होंने 1945 साल में 18 अगस्त ताइमो विमानबंदर में एक दुर्घटना से उसको मृत्यु हुआ, लेकिन उसके ऊपर संदेह रहने का कारण आज तक हमारा भारतवासी का दिल में वो अभी तक जिंदा है। ये एक महान पुरुष है जिसका जन्मदिन सबको पता है, मृत्यु किसी को पता नहीं है। और ये वही व्यक्ति है जिसको इतना कठिनों परिस्थिति में जो डिसीजन लेता है, जो कोई किसी को मन से वो दूरदृष्टि को भरने के लिए जन्म लेना पड़ता है, जिसको इतना हर दिन से इतना कठिन परिस्थिति में जिसने दुनिया का सबसे बड़ा सत्ता का सामने खड़ा होकर बोला, मैं तुमको पास आजादी मांगूंगा नहीं, मैं आजादी छीन कर लूंगा। उसको पुकार था, मैं तुम लोग हमको ढूंढ लो, मैं आपको आजादी दिलाऊंगा। तो मैं कहा भी आपके पास ये आवेदन रखता हूँ, जो अभी तो देश हमारा स्वाधीन है, अभी तो देश का कोना कोना में कोई लोग रात में भूखा सो जाता है। याद कर रहे हैं नेताजी का जन्मदिन के अवसर पे, मैं ये कहूँगा कि आप लोग सिर्फ फील नहीं करें कि आज नेताजी का बर्थडे था। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आप किसी भी दिन जब होता है कोई ऐसे पर्सनालिटी के बारे में बताया जाता है तो सुने, और अभी इतना चीज़ें बताया गया, उसको कोई चीज़ आप अपनी लाइफ में वो चीज़ अपने उतारें और उसको फॉलो करें। उस पर्सन में क्या क्वालिटी थी, ताकि आप लोग भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे और आप लोग भी कोई अच्छी क्वालिटी गेन करेंगे। आपको अभी सुनना है, फील करना है, फिर बाद में जाके क्लास में वही बदमाशी करनी है, पढ़ना नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आप इस दिन को याद करें और नेताजी के बारे में पढ़ें और समझें कि उस पर्सन में क्या क्वालिटी थी कि 128 साल पहले जिस आदमी का जन्म हुआ उसको आज भी हम याद कर रहे हैं। तो आपको कुछ ही समझना है और आप लोग को मोटिवेट होकर अच्छी क्वालिटीज लेना है और आपको जीवन में अपनी वो चीज़ें उतारनी है और जीवन में अपने आप को कुछ सोचना है, कुछ अचीव करना है। मैं ये कहूँगा। धन्यवाद। ट्रेनिंग ऑफिसर आज का इस कार्यक्रम का एंकर संजय कुमार दास, और आज हमारे पास स्पेशल मेहमान भी है अरुणाचल प्रदेश सरकार की तरफ से इमीडिएट ट्रेनिंग के लिए आए हुए ITI इंस्ट्रक्टर्स भी हैं। उसके बाद हमारे पास आउटसोर्स स्टाफ हैं और सबसे प्यारे हमारे CATS ट्रेनिंग्स, CTS ट्रेनिंग्स, आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगा। आज हम सभी के लिए काफ़ी गर्व का दिन है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेता, स्वाधीनता संग्रामी, साहसी वीर पुरुष का जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ था साल 1897 कटक उड़ीसा में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हर साल 23 जनवरी हम इनका नेताजी सुभाष बोस जन्म जयंती के रूप में मनाए जाते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने उनका साहस, पराक्रम और वीरता को देखते हुए 23 जनवरी उनको पराक्रम दिवस के तौर पे मनाने का निर्णय लिया हुआ। तो पूरे भारत में 23 जनवरी पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इस पर हमें काफ़ी खुशी है, काफ़ी गर्व भी है। जैसे किसी को अगर कोई भी मकसद हासिल करना हो तो उसमें कई रास्ते होते हैं।
है ना, कोई आप चरमपंथी पे भी जा सकते हो, नरमपंथी पे भी जा सकते हो। जैसे हम लोग आजकल जानते हैं कि हमारा फादर ऑफ द नेशन कौन है, महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी का जो मकसद था भारत को आज़ाद करना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी मकसद था भारत को आज़ाद करना। तो उन्होंने अहिंसा नीति के माध्यम से किया और इन्होंने कुछ वायलेंस और अपने तरीके से, जैसे हमारे पूर्वज वक्ताओं ने किया, निर्मला हजरा ने बताया, उत्तर सरकार ने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, कितना कठोर परिश्रम करने के बाद उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया और अंग्रेज को उन्होंने काफ़ी दबा के रख के भारत का तकरीबन स्वाधीन कर ही दिया था। तो इनका जो भारत के प्रति अवदान है ये हमको भूलने से नहीं चलेगा। ये हमारा जो आज का जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, सभी को आपको बोलना पड़ेगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो अच्छे क्वालिटी है उसको हमें अपनाना चाहिए, उनके जो साहस है उनको हमें अपनाना चाहिए, उसका जो वीरता है उसको हमें अपनाना चाहिए। ये सिर्फ पराधीन भारत में लागू था, लेकिन अभी जो हमारे जो युवा जितनी शक्ति है इनको भी ये मानना चाहिए, क्योंकि भारत के आसपास के जो प्रतिवेशी है तो भारत का धमका रहा है, तो इसमें तो हमेशा अहिंसा नीति से काम नहीं चलेगा।